Hello, listening friends. How are you today? नमस्कार श्रोता मित्रों, आज आप कैसे हैं? We are glad you tuned in today. हमें खुशी है कि आप सुन रहे हैं. I'm going to talk to you this time and next time about the resurrection of the Lord Jesus Christ. मैं इस बार और अगली बार आपसे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बात करने वाला हूं. In fact, those of you who are listening consistently remember that I told you several times ago about Palm Sunday and Good Friday and Easter Sunday like the three-legged stool of the Christian faith. बल्कि आप जो लगातार सुन रहे हैं, आपको याद होगा कि काफी समय पहले मैंने आपको बताया था कि खजूरी रविवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर रविवार मसीही विश्वास के 3 टांगों वाले मेज की तरह हैं. And today we come to the third leg of the stool. और आज हम इस मेज की तीसरी टांग पर गौर करने वाले हैं. There can be no true Christianity without the physical resurrection of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान के बिना कोई सच्ची मसीहत हो ही नहीं सकती. If there is one word that summarizes the Christian faith, it is the word resurrection. यदि कोई एक शब्द मसीह विश्वास की व्याख्या करता है तो वो है शब्द पुनरुत्थान. Every Christian congregation must be called the community of the resurrection. प्रत्येक मसीही संगति को पुनरुत्थान का समाज पुकारा जाना चाहिए. And the difference between a live, vibrant, worshiping congregation and a dead, lifeless church is the fact of the resurrection. और एक जीवित जोशीली आराधक संगति और एक मुर्दा जीवन रहित कलीसिया में अंतर है पुनरुत्थान का तथ्य. A congregation that stops at the other side of the cross is sad and sorry and without hope. क्रूस की दूसरी तरफ खड़ी संगति एक दुखी, नीरस और आशा रहित संगति है. But believers whose faith is anchored in the literal physical resurrection of Jesus is a celebrating, joyful, worshiping community. लेकिन वो विश्वासी जिनका विश्वास यीशु के यथार्थ शारीरिक पुनरुत्थान में स्थिर है, वो खुश, आनंदित और आराधक समाज हैं. For the resurrection of Jesus Christ is our only source of joy in a broken, dark and uncertain world. क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही इस टूटे हुए, अंधकारपूर्ण और अनिश्चित संसार में हमारे आनंद की एकमात्र आशा है. The resurrection is the essence of the good news. पुनरुत्थान सुसमाचार का निचोड़ है. Therefore we rejoice that the Lord has risen. इसलिए हम खुशी मनाते हैं कि प्रभु जी उठा है. It is obviously true that the cross for us Christians must forever stand at the very heart of our salvation. ये निश्चय ही सत्य है कि हम मसीहियों के लिए क्रूस हमारे उद्धार का केंद्र होनी चाहिए. Through the cross, God did for us what we could never do for ourselves. क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए वो किया जो हम अपने आप के लिए कभी ना कर पाते. Without the cross, there can be no salvation. क्रूस के बिना उद्धार हो ही नहीं सकता. But it is possible for anyone to gaze at the cross and miss the gospel that saves. लेकिन किसी के लिए भी संभव है कि वो क्रूस की ओर देखे लेकिन सुसमाचार को नजरअंदाज कर दे जो बचाता है. It is possible for anyone to look at the cross and stay at the wrong side of Easter. किसी के लिए भी संभव है कि कोई क्रूस की तरफ देखते हुए भी ईस्टर की गलत दिशा में खड़ा रहे. The cross is our symbol, क्रूस हमारा निशान है, not the dead figure of the crucifix. न कि क्रूस चढ़े हुए मसीह की मूर्ति वाला मृत क्रूस. Why? क्यों? Because the risen Christ who trampled upon it and broke it beneath his feet. क्योंकि जी उठा मसीह जिसने इस पर चढ़कर इसे पैरों से कुचल दिया. And that is why Paul said, if Jesus was not raised from the dead, our faith is in vain. और इसीलिए पौलुस ने कहा, यदि यीशु मुर्दों में से न जी उठता तो हमारा विश्वास अकार्थ है. The resurrection is not a mere appendix to the faith. पुनरुत्थान विश्वास के प्रति केवल एक परिशिष्ट ही नहीं है. It is the overpowering, magnificent good news. ये नियंत्रण करने वाला शानदार सुसमाचार है. Therefore we rejoice, for the Lord is risen. इसलिए हम आनंदित होते हैं क्योंकि प्रभु जी उठा है. There is no darkness that the power of the resurrection cannot eliminate. ऐसा कोई अंधकार नहीं है जिसे पुनरुत्थान की सामर्थ हटा नहीं सकती.
There is no despair that the hope of the resurrection does not smite. ऐसी कोई निराशा नहीं है जिसे पुनरुत्थान की आशा हरा नहीं सकती। There is no agony that the assurance of the resurrection does not relieve. ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिससे पुनरुत्थान का आश्वासन आराम नहीं दे सकता। There is no fear that the courage of the resurrection does not overwhelm. ऐसा कोई भय नहीं है जिसे पुनरुत्थान का साहस दबा नहीं सकता। Through the resurrection, God has extracted from the lives of Christians the malignancy of evil. पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने मसीहियों के जीवनों से द्वेष की बुराई को बाहर निकाल दिया है। He extracted the potency of sin उसने पाप की शक्ति को बाहर निकाल दिया है and the sting of death और मृत्यु के डंक को and the challenge of uncertainty. और अनिश्चितता की चुनौतियों को भी। I've met many people who are often tired out, depressed, and feeling the strain of life. मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो निराश और जीवन के दबाव को महसूस करते हुए थके हुए हैं। People who feel inadequate for life and are worried about the future. वो लोग जो जीवन में अभाव महसूस करते हैं और भविष्य के लिए चिंतित हैं। But Easter means that the living, radiant Christ is walking at your side. लेकिन ईस्टर का अर्थ है कि जीवित तेजस्वी मसीह आपके पक्ष में है, Comforting you, आपको आराम देते हुए, assuring you, आपको आश्वासन देते हुए, helping you, आपकी सहायता करते हुए and touching you. और आपको छूते हुए। There are other times I meet people who are afraid of death and what is on the other side of eternity. कुछ मौकों पर मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूं जो मृत्यु के डर से और इस भय में हैं कि अनंत काल की दूसरी ओर क्या है। Easter means that the one who died on the cross has returned to tell us all about the glory down yonder. ईस्टर का अर्थ है वो जो क्रूस पर मरा वो हमें धरती के नीचे की महिमा के विषय में सब कुछ बताने के लिए वापस आ गया। For on Easter Jesus broke out the seeming permanence of death. क्योंकि ईस्टर के दिन यीशु ने मृत्यु का आभास कराती उसकी स्थिरता को तोड़ डाला। And that breakthrough was a sign of what lies ahead for all who follow Jesus. और ये सफलता यीशु के पीछे चलने वालों के लिए एक संकेत था कि आगे क्या है। It is a sign of God's ability to break through every form of barrier. ये हर प्रकार की हदों को तोड़ने की परमेश्वर की योग्यता का चिन्ह है। Every hindrance, हर रुकावट, every grave that stand in his way. हर कब्र जो उसके रास्ते में आती है। Through the resurrection, Jesus is telling us the following. पुनरुत्थान के द्वारा यीशु हमें ये बता रहा है, I can break through any barrier in your life that hinders you from living a full life. मैं तुम्हारे जीवन की हर उस रुकावट को तोड़ सकता हूँ जो तुम्हें संपूर्ण जीवन जीने से रोकती है। Just trust me with all your heart. सिर्फ पूर्ण हृदय से मुझ पर विश्वास करो। Evil had its day on Good Friday, but Sunday was coming. गुड फ्राइडे को बुराई का भी दिन था, लेकिन आगे रविवार आ रहा था। For if the power that was strong enough to get Jesus out of the grave, क्योंकि यदि वो सामर्थ जो यीशु को कब्र से निकालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, mighty enough to shatter and confound the demonic forces, पर्याप्त ताकतवर थी कि शैतानी शक्तियों को हरा दे और बिखेर दे, creative enough to smite death with resurrection, पर्याप्त रचनात्मक के मृत्यु को पुनरुत्थान से हरा दे, then why are we not holding our heads high? फिर क्यों हम अपने सिर ऊंचे उठाकर नहीं चलते? Why are we crushed under the burden of worry and fear? क्यों हम चिंता और भय के बोझ के नीचे कुचले जा रहे हैं? Why are you depressed and despondent? आप क्यों उदास और निराश हैं? Rejoice, for the Lord is risen. आनंदित हो क्योंकि प्रभु जी उठा है। Do you not realize that the very power that raised Jesus Christ from the dead is working in you? क्या आप महसूस नहीं करते कि बिल्कुल वही शक्ति जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठाया आप में भी काम कर रही है? That this power is available to you? कि ये शक्ति आपके लिए भी उपलब्ध है? Well, let's take a moment and read Ephesians chapter 1 verses 17, 18 and 19. आइए कुछ क्षणों के लिए इफिसियों 1 अध्याय 17, 18 और 19 पदों को पढ़ें। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे।
और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। On Good Friday, the Lord was wounded, bruised, burdened, and bound down with human sin. गुड फ्राइडे के दिन प्रभु मनुष्य के पापों के कारण जख्मी, कुचला हुआ और बोझ के नीचे दबा हुआ था। Cut off from the land of the living, with everything seemed to be lost. जीवितों की धरती से अलग कर दिया गया और सब कुछ लग रहा था कि खत्म हो चुका है। The world thought that the hopes and the dreams were dead and done with and defeated. संसार ने सोचा कि सारी उम्मीदें और सपने समाप्त, पराजित और मृत हो चुके हैं। But God, with one act of power, लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ्य के एक कार्य के द्वारा, by the sheer energy of grace of God, brought Jesus from the dead. परमेश्वर के अनुग्रह की उत्तम शक्ति के द्वारा उसने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया। But now forever, that same power is available to you and to me and all who put their trust in Jesus. लेकिन अब सर्वदा के लिए बिल्कुल वही शक्ति मेरे, आपके और उन सब के लिए जो यीशु पर विश्वास लाते हैं उपलब्ध है। Too often we are gazing permanently downward. अधिकतर हम नीचे की ओर देखते रहते हैं। We are obsessed with seemingly useless things. हम प्रत्यक्ष रूप से व्यर्थ की बातों के साथ लगाव रखे हुए हैं। We often think we can rely on our own intellect and our weak efforts. हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि और अपनी कमजोर कोशिशों पर भरोसा कर सकते हैं। We too often concentrate on what is humanly possible rather than what is possible for God. हम अक्सर उस पर ध्यान लगाते हैं जो मानवीय संभावना है, बजाय उसके जो परमेश्वर के लिए संभव है। We too often sit down and calculate our assets and our liabilities. हम अक्सर बैठकर अपनी धन संपत्ति और जिम्मेवारियों को मापते हैं। And we conclude that our liabilities outweigh our assets. और हम परिणाम ये निकालते हैं कि हमारी जिम्मेवारियों का बोझ हमारी धन संपत्ति से अधिक है। And there we sit. और यहीं हार मान लेते हैं। I want to make a confession to you. मैं आपके सामने एक इकरार करना चाहता हूँ। If I had operated on the basis of my assets and liability, I would not be speaking to you today. यदि मैं अपनी धन संपत्ति और जिम्मेवारियों के आधार पर चलता तो आज मैं आपसे बात न कर रहा होता। For my liabilities are always far more than my assets. क्योंकि मेरी जिम्मेवारियां हमेशा मेरी धन संपत्ति से कहीं अधिक रही हैं। But I believe in the God who has the power to resurrect the dead. लेकिन मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जिसके पास मुर्दों को जीवित करने की शक्ति है। I believe in the God who can turn every liability into an asset. मैं उस परमेश्वर में विश्वास करता हूँ जो हर जिम्मेवारी को एक संपत्ति में बदल सकता है। I walk with a risen Christ who is not hampered by my problems and liabilities. मैं जी उठे मसीह के साथ चलता हूँ जो मेरी समस्याओं और जिम्मेवारियों से परेशान नहीं होता। I realize that the risen Christ is standing there besides me with the gift of supernatural power, and I know it is yours for the asking. मैं महसूस करता हूँ कि जी उठा मसीह अलौकिक शक्ति के वरदान के साथ मेरे साथ खड़ा है और मैं जानता हूँ कि यदि आप मांगे तो वो ये आपको दे देगा। You don't believe what I'm telling you? आपको विश्वास नहीं होता जो मैं बता रहा हूँ? Then explain to me how that little group of men in the upper room तो फिर मुझे बताइए कि कैसे ऊपरी कोठरी में वो थोड़े से लोगों का समूह, ordinary, fallible, bungling and blundering men were able to turn their world upside down. उन साधारण भ्रमकारी गलतियां करने वाले और निर्बल मनुष्यों ने कैसे उस समय के संसार को उल्टा कर रख दिया। None of them had an outstanding personality. उनमें से कोई भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला नहीं था। It wasn't that they had an official backing or impressive credential. ऐसा नहीं था कि वो राजकीय पृष्ठभूमि या प्रभावपूर्ण पदों से आए थे। They were not illustrious patriots. वो कोई प्रख्यात देशभक्त नहीं थे। But all they had was the power of the resurrection. लेकिन उनके पास जो कुछ था वो था पुनरुत्थान की शक्ति। And that's everything. और वही सब कुछ है। What about you? आपके विषय में क्या है? Do you say
that can't apply to us today? क्या आप कहते हैं ये आज हम पर लागू नहीं होता? Do you say this is for the great men and women of God of the old? क्या आप कहते हैं ये पुराने समय के परमेश्वर के महान पुरुष और स्त्रियों के लिए है? Do you say, well, we have many problems today? क्या आप कहते हैं खैर हमारे पास आज बहुत सी समस्याएं हैं? Do you say that this kind of power is not for this generation? क्या आप कहते हैं कि इस प्रकार की शक्ति इस पीढ़ी के लिए नहीं है? Then let me ask you this. तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, Has God changed? क्या परमेश्वर बदल गया है? The writer to the epistle to the Hebrews of chapter 13 verse 20 says the following. इब्रानियों की पत्री का लेखक 13 अध्याय के 20 पद में ऐसा कहता है, Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will. अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। Surely you don't think that this power which took Jesus out of the grave is going to be baffled by your little problem? निश्चय ही आप मत सोचिए कि ये शक्ति जिसने यीशु को कब्र में से बाहर निकाल लिया आपकी छोटी सी समस्या से हिलने वाली है। Surely you don't imagine that the God who had done this magnificent resurrection will find our needs and anxiety too much to deal with? निश्चय ही आप मत कल्पना कीजिए कि वो परमेश्वर जिसने ये शानदार पुनरुत्थान किया उसके लिए हमारी आवश्यकताओं और चिंताओं से निपटना मुश्किल होगा। Listen to what Hebrews epistle said again. इब्रानियों की पत्री ने जो बताया उसे एक बार फिर से सुनिए। He who brought from the dead the Lord Jesus Christ, shall he not today, if you ask him, work in you? वो जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, यदि आज आप उससे कहें तो क्या वो आप में काम नहीं करेगा? Oh, but there is one condition here. ओ, लेकिन एक शर्त है। Before the power can work in you, इससे पहले कि वो शक्ति आप में काम कर पाए, before that dynamic reality can lay hold of you, इससे पहले कि वो प्रभावशाली शक्ति आप पर नियंत्रण करे, before our spirits can know the baptism of power, इससे पहले कि हमारे आत्मा उस शक्ति के जल संस्कार को जान पाए, there is one thing you must do. आपको एक काम करना होगा, Self-surrender. आत्मसमर्पण। You cannot just add this power to your own power. आप ये शक्ति अपनी शक्ति में नहीं मिला सकते। You cannot have this power in your life to be among other powers. आप इस शक्ति को अपने जीवन में दूसरी शक्तियों के मध्य रहने के लिए प्राप्त नहीं कर सकते। To receive this power, you must empty yourself of your own self-importance. इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को आत्म महत्वता से खाली करना होगा। You must empty yourself of scheming and manipulating. आपको स्वयं को युक्तियां करने और नियंत्रण करने से खाली करना पड़ेगा। You have to empty yourself of your self-centeredness. आपको खुद को आत्म केंद्रिता से खाली करना होगा। There can be no resurrection power until you are willing to sacrifice what is near and dear to you. आपके लिए कोई पुनरुत्थान की शक्ति नहीं है जब तक आप जो वस्तु आपके करीब और प्यारी है उसे कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। We cannot experience God's energy and power in our lives while we still hold onto what God is saying for us to hand over. हम कभी भी अपने जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते यदि हम अभी भी वो रोके हैं जो परमेश्वर हमें उसे सौंपने के लिए कह रहा है। And this is the condition. और शर्त यही है। You cannot say, ask my brother, he should sacrifice, or ask my sister, she should sacrifice. आप नहीं कह सकते कि मेरे भाई से कहिए उसे बलिदान करना चाहिए या मेरी बहन से कहिए उसे बलिदान करना चाहिए, And somehow still want to be blessed. और फिर भी आप किसी प्रकार से आशीषित होना चाहते I हैं। want you to ask yourself this question. मैं चाहता हूं कि आप खुद से ये प्रश्न पूछिए। With the supernatural force and power waiting to be used, जबकि ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ प्रयोग होने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, and with the power of the resurrection of Christ available to you, और जबकि मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति आपके लिए उपलब्ध है, why should your life ever be helpless and maimed and impoverished and defeated? तो क्यों आपका जीवन कभी भी विवश, लाचार, निर्बल और पराजित हो?
is that you are unwilling to travel the road that Jesus traveled? क्या ऐसा है कि आप उस मार्ग से यात्रा नहीं करना चाहते जिससे यीशु ने यात्रा की? Ask yourself that question. यही प्रश्न अपने आप से पूछिए। Will you claim that resurrection power today? क्या आज आप पुनरुत्थान की शक्ति मांगेंगे? It is my prayer that you do. ये मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा करें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।